चलो. Good morning students. In the previous section we studied that moving air is called wind. The pressure exerted by the air is called air pressure and air exerts pressure in all directions, sideways, upward, downward. And we have taken different examples in the previous sections like riding a bicycle, fluttering of flags, riding a boat. And due to that air pressure, it is difficult to ride a bicycle in opposite direction of air. And you also studied that it's easier to move a boat if the wind is coming behind from it. And we also studied that high speed winds are accompanied by reduced air pressure. And in the last we done an activity, air expands on heating. So let's take another topic, that is wind currents are generated due to uneven heating of the earth. See बेटा, आपने देखा होगा in globe we have two regions, equator region and polar region. Two different regions हैं and we all know that on equator we get maximum heat. Why? Yes, because the sun rays are straight from the sun to the equator region and that's why they have so much intense heat, and that's the reason these regions are warm. And warm air rises and cooler air from the polar region. There are two regions, equator and the pole region, and the cooler air from the polar region came to the equator. Why? Because from the equator warm air rises and cooler air from the equator region rushes in to take its place, and in this way this circulation is set up from the poles to the warmer places, and this is why wind currents are generated due to this uneven heating of the earth. Thunderstorms and cyclone. Thunderstorms and cyclone are, you can see in the figure that there is lightning, certain sound. तो in simple language अगर हम समझें बेटा, thunderstorms means storm. Wind है, blowing air is known as wind. और जब इसकी स्पीड बढ़ती है, जब इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, it converts into a storm and then it reaches to very high speed. बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर हो जाता है with light and sound, then it is thunderstorm. So we can show that कि basically thunderstorms जो हैं वो develop होते हैं बेटा hot and humid tropical regions. Like India is also one of that region. At this rising temperature जो बढ़ रहा है temperature, वो एक strong upward rising wind produce करता है, और ये wind जो है water carry करती है, और जब ये वाटर ऊपर जाकर कंडेंस हो जाता है एंड फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन, और विद रेन अगर आपकी लाइटनिंग और साउंड भी प्रोड्यूस होती है देन इट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म. तो वी कैन से दैट द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with rising air creating lightning and sound is called thunderstorm. Then how thunderstorms become cyclone? Very interesting. Nowadays we are taking the example of Amphan. अम्फान का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वेस्ट बंगाल से. कितनी डिस्ट्रक्शन की है आप लोग स्टडी भी कर रहे होंगे, और दिस इज दी बेसिक साइक्लोन है. और 1999 में भी 1999 में भी आपका अभी मैंने स्टार्ट किया था जब एग्जाम्पल, एक उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा साइक्लोन आया था. तो उसमें जो है उसमें आपका जो है ये आ गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है उसकी जान माल की हानि हुई थी. और उस तरीके से जब ये हम देखते हैं तो बेसिकली यही थंडरस्टॉर्म कैसे साइक्लोन बन जाते हैं वही हमें इसमें बेसिकली स्टडी करना है. क्योंकि जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है बेटा तो वाटर जो है दैट राइजेज अप इन द एटमोसफियर और चेंज इनटू द वाटर. That's what we study in water cycle also, or in thunderstorm में I explained कि water rises up and condenses to form water vapor, and when water vapors changes back to liquid form, क्योंकि water vapor है condense होगा तो liquid form में आ जाता है in the form of rain, जो कि हम इसमें कर रहे हैं. और in this process a heat is released,
ये हीट जो रिलीज हो रही है एटमोस्फियर में, दिस रिलीज्ड हीट जो है दैट वार्म्स द एयर अराउंड, दिस रिलीज्ड हीट वार्म्स द एयर अराउंड एंड दिस वार्म एयर tend to raise and causes a drop in the pressure, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो रहा है तो इसकी वजह से एयर प्रेशर जो है, क्योंकि मूवमेंट्स चल रही हैं, दैट ड्रॉप्स द एयर प्रेशर और एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्ट्रॉम, जो सेंटर क्रिएट हो रहा है वहां पर जाएगी। और दिस साइक्लिक रिपीटेशन और चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड, स्पीड बढ़ रही है जिसकी वजह से प्रेशर बहुत कम होता जा रहा है और दिस वेदर कंडीशन इज कॉल्ड अ साइक्लोन। लाइक इफ आई एम टेकिंग अ सिंपल एक्टिविटी, यू कैन डू दिस। ये वाटर बॉटल है, जब हम इसको विग्रेसली शेक करेंगे, दिस like this I am shaking it and you can, when I drop it you will see it at a center, क्योंकि this high speed wind जो कर रही है that reduces, ये center में आपको जो दिखाई देगा और that leads to the cyclone. So this is how thunderstorms becomes cyclones. Destruction caused by the cyclones, साइक्लोन्स जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हो जाएगा, हाई स्पीड विंड्स जो हैं दैट अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन कॉजेज डैमेज टू दी हाउसेज, जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो घर होते हैं वो सारे के सारे तबाह हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स में दूसरा लेंगे डैमेज कम्युनिकेशन सिस्टम, जितना भी हमारा एक दूसरे से संपर्क करने का जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा, क्योंकि बहुत तेज हवा जो चल रही है उसकी वजह से तारे वारे सब टूट जाती हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा ठप हो जाता है। एंड इम्पॉर्टेंटली कॉजेज सीवियर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि जान माल की जो हमने बात की है, क्योंकि जगह जगह थंडरस्टॉर्म की वजह से कहें या पानी जो जगह जगह बहुत तूफान आता है उससे पानी भर जाता है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लाइफ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है और इस वजह से इतने सारे नुकसान जो हो जाते हैं, बेसिकली लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड लॉस ऑफ मनी। इफ व्हाट हैपन्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट हैपन इफ स्टॉर्म इज अकम्प्लेन्ड बाय लाइटनिंग, अगर तूफान के साथ बिजली कड़क रही है तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, ओपन व्हीकल्स आर नॉट सेफ टू ट्रेवल, कि जो खुले व्हीकल्स होते हैं जिनके छत नहीं है उनमें हमें ट्रैवल करने के लिए जाना ही नहीं चाहिए, और पहली बात तो निकलना ही नहीं चाहिए अगर ऐसा है तो। एंड सेकेंड इज कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल गुड आइडिया, बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है कि हम छाता लेकर बाहर निकलें। थर्ड वन इज इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज, बड़े पेड़ों की बजाय छोटे छोटे पेड़ों के नीचे खड़ा होना चाहिए, बिकॉज द लार्ज ट्रीज आर इजीली हिटेड। देन नेक्स्ट हो जाएगा स्टे अवे फ्रॉम पोल्स एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी मेटल, एज यू ऑल नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर, तो इसीलिए हमें इनसे बिल्कुल दूर खड़े होना चाहिए। देन इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, कि किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं इफ अ साइक्लोन फोरकास्ट। डिस्ट्रक्शन है ये बेसिकली, देयर आर सर्टेन सेफ्टी मेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज, क्योंकि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है वार्निंग देती है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज रैपिड कम्युनिकेशन जो होती है, पोर्ट, फिशरमैन, शिप्स एंड जनरल पब्लिक्स, इन सबको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर मीन्स कि गवर्नमेंट जो है टाइम के साथ ही जो साइक्लोन सेंटर्स बनाने चाहिए। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल टू सेफर प्लेस, कि गवर्नमेंट अरेंज करती है तो इस तरीके से कुछ सुरक्षित जगहें होनी चाहिए जहाँ पर हम इनको लोगों को पहले से ही वहाँ पर पहुँचा सकें। ये हमारे कुछ इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स होंगे जो हम कर सकते हैं। देन एक्शन ऑन पार्ट ऑफ पीपल, कि हम जो इतना स्टडी कर रहे हैं, ये आपको जो बताया जा रहा है ये किस लिए है, बेसिकली ये इसलिए है कि हमारे पार्ट पर हम कौन कौन सी चीज़ों को
कर सकते हैं। क्योंकि इफेक्टिव हमारा जो क्या रोल रहेगा वो हमें इसमें देखना है। तो वो सबसे पहले होगा, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग, कि जो वार्निंग गवर्नमेंट ने इशू की है हमें उन वार्निंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो भी रेडियो पर टाइम से पहले दी जाती है। लाइक अभी जो मैं बार बार एग्जांपल दे रही हूँ अम्फान का, वेस्ट बंगाल में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, पहले से कम्युनिकेशन और कुछ लोगों को न्यूज़पेपर पर, टीवी चैनल्स पर रेगुलरली बताया जा रहा था। तो जिन्होंने उनको फॉलो किया दे आर सेफ, और जो नहीं कर पाए देयर इज सर्टेन मिस हैपनिंग। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स। अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं कहीं पर, तो उसके लिए हमें अपने लिए पहले से ही कुछ खास व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। एंड देन अवॉइड ड्रिंकिंग ऑन रोड थ्रू फ्लड्स, ड्राइविंग अगर बारिश जहाँ स्टेगनेंट वाटर है वहाँ पर हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड हैव कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ इमरजेंसी नंबर। जब हम जाते हैं तो हमारे पास इमरजेंसी नंबर्स के नंबर होने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम उनको कॉल कर सकें। और वी शुडंट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड। इधर उधर से कहीं से भी हम पानी लेकर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फ्लड के वजह से जो पानी है दैट मे बी कंटामिनेटेड, जर्म्स बैक्टीरियाज हो सकते हैं, इसलिए हमें वो पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंटली वी शुडंट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, क्योंकि उनमें करंट हो सकता है, हमारी जान की नुकसान हो सकता है। और इम्पॉर्टेंटली वी शुडंट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स, जो हमें बचा रहे हैं उनको अपनी अनड्यू डिमांड्स के लिए हमें परेशान नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, वी शुड कोऑपरेट एंड हेल्प ईच अदर। एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, तभी हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और ये जो टॉपिक आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है वो भी इसीलिए है ताकि आप जो है इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही जान सकें। लेट्स हैव अ रिकैप। जो अभी हमने स्टडी किया इसका एक रिकैपिचुलेशन देखेंगे जो हमने इस सेक्शन में पढ़ा। मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स, जो हमने स्टडी किया, क्योंकि मॉनसून जब आता है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं जो कि रेन लाने में, बारिश लाने में हमारी मदद करते हैं। और इम्पॉर्टेंटली वी स्टडीड अबाउट द थंडरस्टॉर्म्स, दैट थंडरस्टॉर्म्स आर कॉज्ड बाय स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स, साउंड एंड लाइट। और why it happens? It happens because of the rising of air. Then we studied about the cyclone. Cyclone are the basically in America it's known as hurricane. In Japan it's known as tufan. But all together it's cyclones. And for above we have studied the certain safety measures. But importantly self help is the best help. हम खुद की हेल्प करेंगे और तो हम कर सकते हैं, क्योंकि खुद अपनी हेल्प करेंगे तो हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इट्स बेटर टू प्लान इन एडवांस, कि जब वार्निंग मिलती है फॉरकास्ट की तो वी शुड प्लान इन एडवांस। तो दिस इज ऑल अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। आई होप यू एंजॉयड माई सेशन। थैंक यू।